Dear student, types of matrices. मैट्रिक्स की किस्मों के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स हमने इंट्रोडक्शन तो क्लियर कर लिया कि मैट्रिक्स क्या है. वेरी इजी, नॉट अ प्रॉब्लम. गो टू द नेम. रो मैट्रिक्स, सिंपल. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो एक a matrix has a row. A matrix has one row. For example, I wrote X एक मैट्रिक्स है और इसकी रो जो है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रो 1 है. तो our matrix has one row. Column matrix, very easy. When you go any matrix where we have a row, so we say it is a row matrix. For example, column matrix. Our matrix has one column. Now what? Our matrix has a, say a column. We say it is a column matrix. For example, matrix W here. For example, 1 and 2. How many rows? Sorry, how many columns? One column. You count the column. In this matrix, you count the row. Clear? For example, our matrix has one column. For example, look at here. W, our matrix 1 and 2. Look at here. 1, 2. 1 and 2. Column, you count the column. One column. So we say, very simple, our matrix has one column. Column matrix. Zero matrix. Zero matrix. I said in an initial moment, zero matrix, a null matrix, a matrix all of whose elements are zero. For example, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और 0 0 0 0. How many rows? Row 1, row 2, column 1 and column 2. तो ऑर्डर पेयर क्या होगा? R into C equal to या R by C 2 into 2. Order pair. But you have to remember, all elements is 0. Our matrix, all of whose elements are 0, is called zero matrix. Come to the rectangular matrix. Our matrix has not equal rows and columns. For example, matrix A 1 2 3 4 5 6. Row 1, row 2, column 1, column 2, column 3. So, order pair R into C. So how many rows? 2.
and column 3. Difference 2 row and 3 column. So I wrote, come to the definition, a matrix has not equal rows and column. Rows and column are not equal. So we say this is a matrix, rectangular matrix. You know very well, आपने rectangular देखा होगा. इस rectangular में इसकी length और width इक्वल नहीं होती. इसीलिए हम ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें रोज या कॉलम या रोज डिफरेंट हो, तो हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. यस स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स. कम टू द नेम क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर किसको कहते हैं भाई? ऐसी शेप जो स्क्वायर में हो, यहां से भी लेंथ भी और भी बहुत इक्वल हो, हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. फॉर एग्जाम्पल, आ मैट्रिक्स हैज equal rows and column. A matrix has equal rows and column. It is a square matrix. Very simple. Look at the example. Be a matrix. For example, 2, 6, -1 and 4. How many rows? Row 1, row 2, column 1, column 2. Any order pair? Order matrix B R into C. How many rows? 2 rows and column 1, 1, 2, 2 column. Rows and column. Come to the definition. A matrix has equal rows, equal 2 rows and column. Both are equal. When come to the next example, matrix X, A, B, C, D, E, F, G, H and I. How many rows? Row 1, row 2 and row 3. Column 1, column 2 and column 3. Column 1, 2 and 3. Row 1, row 2 and row 3. So order pair matrix name X. Write here X. R by C. R by C. R into C. Here we use R by C. How many rows? 3 rows. And how many columns here? 3 columns. Both are equal. So we say a matrix has equal rows and equal column. It is a square matrix. आगे हम जितने भी मैट्रिक्स के बारे में जाएंगे और मालूम करेंगे. ये हमारा मैट्रिक्स नंबर हम इसको 5 दे देते हैं. तो बाकी तमाम मैट्रिक्स जो हम इसके बाद फाइंड आउट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. याद रखें, ज़्यादातर हमारा जो वास्ता रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रहेगा. और स्क्वायर मैट्रिक्स आपने समझ लिया कि आ मैट्रिक्स हैज इक्वल रोज एंड कॉलम. इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. हैव यू क्लियर? Dear student, diagonal matrix
अब इसको इस तरह समझने, अब हम जो सीखने जा रहे हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की समझ लें, स्क्वायर मैट्रिक्स के बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ये पार्ट्स हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ये बच्चे हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था। इसमें हमने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, यानी रोज भी और कॉलम भी दोनों ही बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर हम कहें कि आर स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन द लीडिंग मैन, या उसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं डायगोनल, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हमने एक नई टर्म यहां पे सीखी, जो क्या है, प्रिंसिपल या मेन डायगोनल क्या होते हैं। पहले तो हमारी बात ये समझ में आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हिस्सा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पे हमने समझ, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम एक टी मैट्रिक्स लेते हैं, ये टी मैट्रिक्स है, और यहां पर हम क्या करते हैं, 1 2 and 3। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0। अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो हमारे पास ये 1 2 3 जो हमारे पास आ गया है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल से डायगोनल कहलाएगा कंडीशन। क्लियर? ये जो हमारे पास 1 2 3 1 2 3, अब इनके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो तमाम जीरो होंगे। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ये कंडीशन कहलाएगी। तो हमारी डेफिनेशन क्या, आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट इन द लीडिंग, जस्ट लाइक दिस। मैन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल से ये जो होंगे ये जीरो नहीं होंगे। तो इनको, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चा है। यानी यहाँ भी हमने इस बात की ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ whose diagonal elements are equal, I mean same, is called scalar matrix। अब यहां पे जो हमारे पास डायगोनल या मेन डायगोनल जो कंडीशन होगी वो सेम होंगे डिजिट हमारे पास, या वेरिएबल जो है नंबर या वेरिएबल, मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंबर और वेरिएबल ही से ये एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक H मैट्रिक्स है, और हम इसके फॉर एग्जाम्पल 4 0 0 4, ये जो कंडीशन है
इस कंडीशन को हमने अभी से पहले भी सीखा, क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायगोनल प्रिंसिपल, या हम इसको एक और नाम भी कह सकते हैं, सही है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल या डायगोनल प्रिंसिपल। ये सेम होंगे, ये सेम होंगे। तो हम इनको कहेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। अगर आप इस कंडीशन को देखें, वेरिएबल हो या डिजिट हो, ये हमारे सेम हो, तो हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम डिजिट या सेम वेरिएबल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix and unit matrix. The identity matrix is a square matrix, say, that has ones along the principal diagonals and 0 other elements. Any 0 others elements. यानी नाम पे आ जाए इसकी हेडिंग क्या है, यूनिट। यूनिट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसका नाम टी मैट्रिक्स रख देते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंडीशन आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल प्रिंसिपल। डायगोनल प्रिंसिपल जो हमारे पास ये जो कंडीशन आएगी, डायगोनल जो प्रिंसिपल आएगी, ये हमारे पास 1 होगा एंड अदर, और दूसरी जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उनकी, यानी जो एलिमेंट हमारे पास होंगे वो 0 होंगे। अब देखिए अगर हम इसके ऑर्डर पेयर मालूम करें तो ये R1 R2 and R3, C1 C2 and C3। तो ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, R से बाय C, तो R3 एंड कॉलम 3। तो इसीलिए कहा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हिस्सा है। यानी अभी हमने जितने भी मैट्रिक्स पे डिस्कस की, ये तमाम जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और हमें आगे जाके एडिशन समझना है, सब्ट्रैक्शन समझना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन या इसके आगे जो भी हमने से मैट्रिक्स के बारे में आगाही हासिल करना है, हमारा वास्ता ज़्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मैंने बता दिया कि आ मैट्रिक्स हैज रोज एंड कॉलम आर इक्वल, यानी रोज भी बराबर होंगी और कॉलम भी बराबर होंगे, यानी ऑर्डर पेयर रोज के और कॉलम के दोनों ही बराबर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बहुत तनदही से समझा होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैथ बाय प्रैक्टिस है, आपने घर पे इसकी खूब प्रैक्टिस करना है और मूवीज़ को भी देखना है। न्यूटन कोचिंग सेंटर का जो हमने चैनल बनाया है ये उन तुलबा और तालबात के लिए है जो ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, घर पे बैठकर आप ये सीख सकते हैं। और इसमें आपको एक सहूलत है कि हर लेक्चर को आप रिवर्स करके फॉरवर्ड करके अपनी अकॉर्डिंग यूर से ये एजुकेशन जो भी आपको नीडेड होती है उसके मुताबिक आप देख भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी मेहनत से हम जो मूवीज़ बना रहे हैं आपके लिए, तो आप सब भी इस पे
लगन से, शौक़ से, जज्बे से और मेहनत के साथ इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जो भी आपके कज़न्स हैं, कुलीग हैं, क्लासमेट हैं, उन सबको बताएंगे। और मुझे उम्मीद है आप सबसे कि इंशाअल्लाह ताला आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल को भी प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।